So we are starting with questions or quant section for Snap. Questions are, I'll say, easy or moderate. Snap does not ask higher level question, though NMAT has been putting some CAT level questions. When I say NMAT and CAT, I mean the olden years, 2004 to maybe 2015, 2017. In NMAT, you can expect quant questions which are CAT level from these years. But Snap, CET, CMAT, the questions will be very, very easy and direct application based questions. So you have 1 minute, less than 1 minute, give it a shot. See, the idea is to solve these questions with simplest possible way and maintain speed along with accuracy. While reading this question, I'll maintain speed. There's a gold and silver alloy which weighs 50 grams. It is 80% gold. How much gold should be added so that the percentage of gold increases to 90%? So this is the amount of gold to be added. So 80% gold, I'm adding 100% gold and I'm generating 90% gold. This is final. These are initial products. So the gap here is 10. The gap here is 10. So I'll be adding equal quantities. If this is 50 grams of initial, I'll be adding 50 grams of the new component to achieve the same result. What is the process called? Alligation. When do we apply alligation? When we are told how much was the percentage initially when combined and what is the percentage finally combined. Whenever these three parts are given, the question is always alligations. I can try and solve it through 4 or 5 different ways. I can say right now 80% of 50 is 40 grams gold. I'm going to add X grams to it. This is going to be 50 gram plus X. It is going to be 90%. This is total gold. 80% of this is 40. X is the gold added. Total gold is 50 plus X. You solve this. और solve भी कैसे करें? Think logically. नीचे minus कर दो, नीचे minus कर दो. So you have 40 plus X upon 10 is equal to 9 upon 1. Cross multiply. X is equal to ये हो जाएगा 90 minus 40, 50. Many more methods we can apply to answer this, but this is the fastest one. Alligation. Whenever you are told final percentage क्या बनने वाला है, what you are combining is told to you as a percentage, as a ratio, apply alligation. ये हमेशा quantity बताएगा. Any doubt in any of the methods, one or two? और मेथड चाहिए? देखो दुकान लगा देंगे. What are you adding? You are adding gold to it. What is not changing?
The silver component. Silver was 20% of 50 grams. Now silver is 10% of how many grams? Silver is 20% of 50 grams. Silver is 10% of how many grams? This obviously has to be 100. So if there are 100 grams total, 50 grams were original. How much did you add? You added 50 grams to it. So three methods are there on the screen. What is this approach? What is the idea behind the third approach? Equate the component not changing. So in your regular classes, if the mentor covers this kind of phrasing, equate the component not changing. So ये भी 10 सेकंड का अप्रोच है, ये भी 30 सेकंड का अप्रोच है. This will method 2 will require some understanding. Method 2 सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको. What is method 3? Equate the component not changing. You are adding gold. You have been given percentage of gold. What is not changing? Amount of silver. It was 20% in 50 grams. Now it is 10% in what? It is 10% in 100 grams. 50 ग्राम पहले था, अभी 100 grams है. तो how much did you add? You added 50 grams further. I hope all methods are clear. Try this. Such questions have been asked in SNAP, CET, CMAT. They are still being asked. Anyone you know who is in 6th standard can solve this question. But you need to be able to solve this within 1 minute, even lesser than that, so you can focus on difficult problems. So whenever a question involves addition, multiplication and subtraction and values are very large, this approach is called digital sum. It is based on one condition: the digits must be different, addition must be different. What is the addition of digits? 4. What is 5 to the power 4? 625. What is addition of digits? This is 8 plus 5, 13. 13 will add up to 4. 4 into 4 is 16. The addition of digits is 7. Everything must come down to a single digit. The addition of digits is 6 plus 7, 13. 13 is 4. It is not 7. Is the digit 7 itself? Yes. Maybe the answer. Maybe. Here 7 plus 6, 13, 13 plus 5, 18. 18, the addition is 9, cannot be the answer. 7 plus 7, 14, 14 plus 2, 16. 16 adds up to 7. Now answer is either this or the answer is this. Answer 7000 है या फिर 7720 है. तो ये नंबर 112 into 625 होने वाला है. Is a multiple of 25, multiple of 25 and multiple of 4. 2 0 तो है ही है. What is this? This is 4 into 28, which is 4 into 7. तो ये आपको मिल जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4. 4 जीरोज आएंगे, ये आपका आंसर है. जीरोज मैच करके आंसर आ गया. अदरवाइज डिजिटल सम इज वेरी यूजफुल. क्या अप्रोच है? अगर आपको रैंडम नंबर मल्टीप्लाई करने बोले, 1 2 3 into 3 7 2 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करने बोले और बहुत बड़े बड़े आंसर हो, आप इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो. द एडिशन इज 6, the addition is 12. 12 means 3. 6 into 3 is 18. The digit sum is 9. आपके आंसर का जो सम होगा will also be 9. Digital sum method is used for what calculations? Addition, multiplication, subtractions. Division में कई बार क्या है, decimal आ जाता है. In that case, avoid this approach. Digital sum method. अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ा, दो आंसर का सम सेम आ रहा था. ऑप्शन
ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 का एडिशन वॉज 7, तो मल्टीप्लाई मुझे करना ही पड़ गया बेसिकली। अदरवाइज डिजिट का सम अलग अलग है, दिस मेथड ऑलवेज वर्क्स, डिजिटल सम प्लस मल्टीप्लाई माइनस पे ये काम करता है। टेक अ मिनट, ट्राई। Again, most people can solve such a question if enough time is given. आप जल्दी कैसे करोगे, शॉर्टकट से कैसे करोगे, वो सवाल है। मोस्ट पीपल आर नॉट आंसरिंग, क्या चल रहा है? ऑब्जर्व, कभी भी टाइम एंड वर्क का सवाल होता है, वी टेक एलसीएम एज वर्क। आपको दिख रहा है 6 इज ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ दीज टू, तो ए का स्पीड 3 आ गया, बी का स्पीड 2 आ गया, सी का स्पीड 1 आ गया। लैंग्वेज सुनना, ए is assisted by B and C on every third day. A is assisted by B and C on the third day. इसका मतलब है अगर A 3 दिन काम करेगा तो B और C 1 दिन काम करेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 9 + 3 12। 12 वर्क करने में 3 दिन लगे, 60 का वर्क करने में 15 डेज लगेंगे। So you can pretty much approach this verbally. मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट वी डू इन ऑल टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड इज वी टेक एलसीएम एज द वर्क। 60 इज द वर्क। अगर 60 वर्क है तो इसकी स्पीड 3 है, 2 है, 1 है। ये दोनों जो है बी और सी थर्ड डे पे काम करेंगे, ये 1 दिन काम करेंगे, ए तीनों दिन काम करेगा। सो 9 + 3 12, 12 यूनिट का वर्क होगा जब जब 3 दिन बीतेंगे। तो 12 से 60 कैसे पहुंचेंगे? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, दिस इज योर आंसर। ये साइक्लिक पैटर्न से बनता है, कोई भी चीज हर तीसरे दिन में हो रही है, 3 3 दिन की साइकिल लेनी है। पीपल, इज द सॉल्यूशन क्लियर टू यू? ये समझ में आ रहा है कैसे ऑलमोस्ट वर्बली हो जाएगा? ए तीनों दिन काम कर रहा है, बी और सी 1 दिन काम कर रहे हैं, 12 यूनिट का वर्क हो गया टोटल 3 डेज में। अब हर बार 3 3 दिन बीतेंगे, इतना ही वर्क होगा। ट्राई।
अगेन आप बना लोगे, एनीवन हु हैज गिवन 6 months टू कैट प्रिपरेशन बना लेगा, बट स्पीड मेंटेन हो पा रही है क्या? दो स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन लिखा, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 marks मोर देन द अदर, हिज मार्क्स was 56% of sum of their marks. What were the marks obtained by them? 9 नंबर का डिफरेंस हर जगह पर है, यस, 9 नंबर का डिफरेंस हर जगह पर है। अब आपने क्या कह दिया, अगर दोनों के नंबर मिलाकर 100 हैं तो ज्यादा वाले के 56 हैं, तो लो वाले कितने हो जाएंगे, 44। इन दोनों में कितना गैप है, फिलहाल इन दोनों में गैप है 12 मार्क्स का, रियलिटी में कितना गैप है, 9 मार्क्स का। हाउ डू यू कन्वर्ट 12 इंटू 9? इसको 9/12 लगा दो, तो आप क्या करोगे, इसके नंबर होंगे 56 इंटू 9/12 और इसके नंबर होंगे 44 इंटू 9/12। इसके नंबर 11 के मल्टीपल्स हैं। फिर एक बार सुनो, ये सर आपने अजम्पशन कैसे ले लिया? आपने कहा ज्यादा नंबर लाने वाले के नंबर आर 56% ऑफ बोथ, तो दोनों को मैंने 100 अज्यूम कर लिया, इसके 56 हैं, इसके 44 हैं, तो जैसे ही ना यहां पर ये 11 का मल्टीपल आ गया, वैसे ही मेरा आंसर ये आ गया। यहां पर 12 का गैप है, एक्चुअल में गैप 9 है। हाउ डू यू इक्वेट रेशो इन रियल? एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है, तो लगा दो 9/12, 9/12, दिस इज 3/4, 3/4, तो 33 मार्क्स आ गए, तो इसी से आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी। सो जो लोग एग्जाम्स क्रैक करते हैं इस तरह के स्पीड बेस्ड एग्जाम, एनमेट, स्नैप, सीईटी, सीमैट, वो ऐसा सोचते हैं टोटल 100, ए का 56, बी का 44, इक्वेट द रेशियो, जॉब डन। Is the example clear? Should we move on? Try. बहुत पुराने क्वेश्चन हैं ये, और 1 मिनट पर क्वेश्चन में आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे स्नैप से, बताओ। वर्बली आंसर चाहिए यहाँ पे। फ्रूट सेलर ने 40% एप्पल बेच दिए, बच गए 420, थे कितने? 60% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 420? ऑप्शंस भी अगर आप देख लोगे, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7। फिर से एक बार इसको समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आपने कहा 40% एप्पल बेचने के बाद भी 420 बचे हैं, दैट मीन 60% इज इक्वल टू 420। किस नंबर का 420 इज दिस? क्वेश्चन फिर भी थोड़ा टेढ़ा बन जाता अगर ये पूछा होता, हाउ मेनी एप्पल्स वर सोल्ड। ये क्वेश्चन पूछा था, फिर भी थोड़ा टेढ़ा बनता, बच्चे मिस्टेक करते। आप कह रहे हो 40% बेच दिया, हमें नहीं पता, 60% बचे हैं, विच इज 420, तो रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व कर दो। ये 2/3 है, ये आपका इधर से कैंसिल हो जाएगा, 140 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 280, खत्म। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ट्राई दिस। ये ऑप्शंस हैं, दीज आर योर ऑप्शंस।
आई डोंट सी एनी आंसर्स कमेंटेड. क्यों भाई इतनी देर क्यों? व्हाई सो लॉन्ग? तो ये चीज याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट में पैसा कभी भी आखिरी में ऐड होता है. तो यू डोंट हैव टू मूव योर पेन एट द बिगिनिंग. अगर 3 साल का पैसा इतना है, 4 साल का इतना है, व्हाट इज द एडिशन? एडिशन इज 39. सो एवरी ईयर देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 39 रुपीज. यहां पर आते आते प्रिंसिपल प्लस 3 इंटू 39 हो चुका है, विच इज 5854. देखो मेरी प्लस माइनस बड़ी खराब है. कैन आई से दिस लुक्स लाइक 40 minus 1, दिस लुक्स लाइक 120 minus 3. तो ये हो जाएगा आपका 854. ये 3 ऐड होगा, मुझे आखिरी में 7 चाहिए. ये 3 जाकर ऐड होगा, अच्छा 3 है ना, ये 3 आखिरी मुझे 8 चाहिए. 815 आखिरी मुझे 8 चाहिए. ये रहा मेरा आंसर. मैं फिर आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं. कंपाउंडिंग में व्हाट हैपेंस इज, इन कंपाउंडिंग व्हाट हैपेंस इज, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई होता है अमाउंट बनाने के लिए इन कंपाउंडिंग. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता है हर साल, और सेम वैल्यू ऐड होती है, इट इज एडेड एज अ इंक्रीमेंट. तो यहां से लेके यहाँ पे इंक्रीमेंट 39 रुपीज का है. एक साल इंक्रीमेंट 39 रुपीज का है. तो 3 साल का होगा 3 इंटू 39. तो प्रिंसिपल में 3 इंटू 39 8 ऐड करके 815 बनेगा. इसके आखिरी में 7 आएगा, वो 7 जब माइनस होगा 5 से तो आखिरी में 8 आएगा. देयर इज ओनली वन आंसर ऑप्शन. यूनिट डिजिट लगा दिया मैंने. तो बेटा दीज थिंग्स सेव एटलीस्ट 30% ऑफ योर टाइम. ऐसा जुगाड़ लगाना. ऑप्शंस में सब में आखिरी में देखो, यहां पर 3 जगह 0 है, केवल यहां पर अलग डिजिट है. फटाफट मैच हो गया. ट्राई दिस. इंटरेस्ट आपका बेटा 39 रुपीज है एवरी ईयर. 3 साल का पूछेगा 39 इंटू 3 इंटरेस्ट है. 4 साल का पूछेगा तो 39 इंटू 4 इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट इज आस्क्ड 39 एवरी ईयर का इंटू n इज द इंटरेस्ट. So you might be feeling this question is time taking, no doubt about it. अब आपको एग्जाम में सोचना है इसमें उतरना है कि नहीं. अब जो मैं थोड़ा करने जा रहा हूं ना, इसको भी थोड़ा जुगाड़ मेथड कहते हैं. आप एक बात समझना, जो टोटल पैसे हैं उसमें 2 जीरोस हैं, देयर आर 2 जीरोस. और जो स्कीम बी का इन्वेस्टमेंट है उसमें भी 2 जीरोस हैं. कैन आई सेफली से जो स्कीम ए का पेमेंट होगा उसमें भी 2 जीरोस होंगे? इज इट सेफ टू अज्यूम? किसी भी नंबर में अगर 2 जीरो होते हैं और आप उसमें कोई परसेंटेज लगा देते हो तो जीरो कट जाएगा ना. तो आपको करना क्या है, लैंग्वेज सुनो. आप यहां से 2 जीरो पहले ही गायब कर दो, 2 जीरो पहले ही गायब कर दो.
139 में से अगर आपने 64 को कम कर दिया तो आपके पास 75 बच जाएगा और इधर बच जाएगा आपके पास 64। इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। ये 2 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का इंटरेस्ट विल बी 1754। आपको केवल और केवल आखिरी डिजिट वेरीफाई करना है। देखो हो सकता है क्या, चेक कर लो। 5 इंटू 4 0, 6 इंटू 4 4, आखिरी में 4 आता है, इसको साइड कर दो। अगर 65 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेगा कोई बी में तो 139 माइनस 65 इज 74 इंटू 14 इंटू 11। देखो 1754 बनता है क्या, यहाँ आखिरी में 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, 5 और 6 आखिरी में क्या बनेगा 1। ये नहीं हो सकता। अगर 72 रुपीज इन्वेस्ट करेगा ये बी में तो 72 को माइनस कर दो तो ये इन्वेस्ट करेगा 67 रुपीज पहले में इंटू 14 इंटू 11। आखिरी में इसके 2 है और इसके आखिरी में 8 है तो दोनों के आखिरी में 0 आएगा, 4 तो नहीं हो सकता। अगर इसने 75 इन्वेस्ट किया सेकेंड वाले स्कीम में, 75 माइनस कर दो तो पहले में 64 होगा इंटू 14 इंटू 11, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा, आखिरी में 1 आएगा। ओनली ऑप्शन पॉसिबल इज 1। अब मैं इसको एक एक करके फिर से ब्रेक डाउन करता हूँ, स्लो डाउन करते हैं। सबसे अच्छी बात आपके पास क्या थी, द बेस्ट थिंग दैट यू हैव इज आखिरी में 2 जीरो है, हर चीज में 2 जीरो है। बी के आखिर में अगर 2 जीरो है तो ए के आखिर में भी 2 जीरो होंगे और आप जब इनमें से कोई परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे। तो मैंने सीधा हर एक ऑप्शन में से 2 जीरो कम कर दिए और इसमें से भी 2 जीरो कम कर दिए। ये 2 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का क्या होगा, हाफ होगा 1754। मुझे आखिरी में 4 चाहिए क्योंकि जो लोग पेपर सेट करते हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हर तरीके से सोच के सेट करें। यूजुअली दैट डज नॉट हैपन। तो आप जैसे हम जैसे लोग जुगाड़ लगा सकते हैं इस तरीके का। आप अगर चाहो तो डिजिटल सम चेक कर सकते थे बट यूनिट डिजिट से जल्दी आंसर आ गया, केवल आखिरी डिजिट चेक कर लिया। देखो थॉट डेवलप करो, लिखो इन चीजों को। और इल्स अगर ये सच में स्नैप एग्जाम है और आपको 1 मिनट में हर एक क्वेश्चन बनाना है, 1 मिनट पर क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पर मिनट, तो ये इसको स्किप करना पड़ेगा आपको अदरवाइज। इसमें एक एलिगेशन का मेथड भी काम कर सकता है बट देखो दिस नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 139, तो ये परसेंटेज इंटीजर नहीं है। नहीं तो आप क्या कहते, 14% का यहाँ पेमेंट है, 11% का यहाँ पेमेंट है, अगर ये परसेंटेज इंटीजर आ जाता तो मैं एलिगेशन लगा के आपको क्वांटिटी बता देता। ये 2 साल का 1754 बन रहा है, 1754 13900 इंटू 100। ये 1754 इसका मल्टीपल नहीं है, ये इंटीजर परसेंटेज नहीं है। ये तो मैं ओवरऑल परसेंटेज निकाल के एलिगेशन से भी बना सकता था ऐसे। ये नहीं काम करेगा आपसे, ये नहीं अप्लाई होगा आपसे। इज द अप्रोच क्लियर, द वन आई हैव अप्लाइड, डिजिट वेरीफाई करना। चलो कम से कम पेन यूज करके गिव मी आंसर फॉर दिस। पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक नंबर 20% ज्यादा है थर्ड से, 50% ज्यादा है थर्ड से, तो आप क्या कर लो 120 और 150 ले लो। आपने थर्ड नंबर को क्या अज्यूम कर लिया 100। अब रेशो पूछ रहा है 30 इंटू 4 30 इंटू 5, खत्म है ना सवाल। कैलकुलेशन मिस्टेक, 30 इंटू 4 30 इंटू 5, ये रहा। पेन भी क्यों चलाना भाई आप मुझे बताओ।
एक नंबर दूसरे से तीसरे से 20% ज्यादा है और दूसरा नंबर 50% ज्यादा है तीसरे से, दोनों का रेशो पूछ रहे हैं हमसे। तीसरे नंबर को आपने 100 अज्यूम कर लिया एंड पुट देम इन द रेशो। जितना ज्यादा लॉजिक से सोचो उतना अच्छा। नंबर्स आर वेरी सिंपल, डू नॉट पैनिक, कोई रिस्क मत लो यहाँ पे। 10 ओवर्स में एवरेज 3.2 है, बाकी के रिमेनिंग के 40 ओवर्स में कितना एवरेज हो अगर टोटल हमें चाहिए 282। पेन को रोको। अगर आपको 282 रन्स चाहिए, आपने 10 ओवर में 3.2 का एवरेज मेंटेन किया, तो आपने 32 रन बना दिए, बच गए 50 रन्स। ये 50 रन्स कैसे बनाने हैं? 250 रन्स बच गए। ये 250 रन्स बनाने आपको 40 ओवर में। 25/4 6.25। नंबर्स बहुत छोटे हैं, नंबर्स आर वेरी स्मॉल। 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, यहीं पे ही सॉल्व कर दो। आपको 10 ओवर्स में 32 रन्स मिले हैं, 282 टोटल चाहिए, 250 रिमेनिंग है। रिमेनिंग, हाउ मेनी रिमेनिंग ओवर्स आर देयर? 40, डिवाइड कर लो 6.25। ये स्नैप क्वेश्चंस हैं। यश, आपका जो टीएसडी का पूरा थ्योरी है जो क्लास में मैंने करवाया है, दैट स्टार्टेड विथ अ सिमिलर क्वेश्चन। अगर कोई 5 मिनट में कुछ एक काम करता है, फॉरगेट द काम, अब मुझे 1 घंटे में चाहिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। How do I convert this into 60? 12 times. What is 12 times of this? 7200 meters. तो 1 घंटे में कोई 7200 मीटर्स भागेगा तो कितने किलोमीटर्स भागेगा? अब आप कहोगे सर क्लास में तो सब ये लगाते हैं। अरे इतना टाइम रखा है कि आपके पास, मेरे को बताओ। आपने पूछा 5 मिनट में अगर कोई भागता है 600 मीटर्स तो 1 घंटे में कितना भागेगा? तो आप पहले 5 मिनट को 1 आवर में कन्वर्ट कर दो, 12 टाइम्स। आप इसको भी 12 टाइम्स कर दो, 7200। तो 1 आवर में ये 7200 मीटर भागते हैं, विच इज 7.2 किलोमीटर्स।
तो थोड़ा सा पहले आप रुको, इसमें बहुत छोटे छोटे वेरिएशंस हैं। 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितने आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस अगर 25% प्रॉफिट इज देयर। फॉर्मूले बने, फॉर्मूले मत लगाओ यहाँ पे। 20 इंटू सीपी इज इक्वल टू एक्स इंटू एसपी। कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज एसपी अपॉन सीपी को दर्शाता है, इसको नीचे ले आओ। 20 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी, कितना परसेंट? 25%। 25% इज 5/4, कैंसल्ड कैंसल्ड, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 16। ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। 10 सामानों का कॉस्ट प्राइस 12 के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा? 10 सामानों का कॉस्ट प्राइस 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा? इन ऑल सच क्वेश्चंस आप एसपी अपॉन सीपी क्रिएट कर दो। एसपी अपॉन सीपी यहां पर आपका आ गया 20 अपॉन एक्स, वो 25% के बराबर है। 25% 5/4 का इंक्रीमेंट होता है, इक्वेट कर दिया, ये रहा आपका आंसर। ये बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है, ये बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है, लिख लो, दिखते रहेंगे आपको इस तरह के एग्जाम्स में। ऑलवेज क्रिएट द रेशियो बिटवीन एसपी एंड सीपी। एसपी ऊपर होना चाहिए। इसी को थोड़ा एडवांस करके अगर मैं कैट लेवल का कॉन्सेप्ट बनाऊं तो दैट इज कॉल्ड चेन रूल। इस बार भी आउट ऑफ 3 स्लॉट्स, पहले स्लॉट में और तीसरे स्लॉट में, दोनों में चेन रूल पे क्वेश्चन आया है। दिस इज चेन रूल, एसपी अपॉन सी मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये सवाल अगर एनमैट में आता है आई विल सॉल्व। एनमैट के अलावा ये सवाल और किसी एग्जाम में आता है, सीईटी, सीमैट, स्नैप, आई विल स्किप दिस। You need to form a committee of 5 persons out of this many men, this many women. कम से कम 3 men चाहिए। तो men अगर 3 है तो women 2 है। men अगर 4 है तो women 1 है। men अगर 5 है तो women 0 है। 3 केस बनेंगे। ये men कहां से आएंगे? 7C3 इंटू 6C2। ये 4 कहां से आएंगे? 7C4 6C1। ये 5 कहां से आएंगे? 7C5 इंटू 6C0। एज ए मेंटर मेरी स्पीड काफी अच्छी है। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज, मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में वर्बली कर सकते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 6 और 6 कट गया, ये आ गया 35। 6C2 is 6 into 5 upon 2 into 1 which is 15। 7C4 और 7C3 दोनों बराबर होते हैं which is again 35 into 6। 7C5 is also equal to 7C2 which is 7 into 6 upon 2 into 1 which is 21। तो ये हमारा आंसर है, दिस इज अवर आंसर। 35 into 15, 35 into 6 which is 35 into 21 plus 21। So that is 36 into 21, कॉमन ले लो, ये लो, ये आपका आंसर है। तो आखिरी में 6 आएगा बेटा, आखिरी में 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। आंसर ऑप्शन डी। एक बार फिर सोचो,
If this is not snap exam, skip all of this. ये क्या तरीके से कैलकुलेट किया, कॉम्बिनेशन जल्दी कैसे निकालें, हाउ डू वी कैलकुलेट कॉम्बिनेशन फास्टर. मैं राइट साइड में आपको दिखाता हूँ ट्रिक के फॉर्म में. अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए 7C3 का, तो 3 नंबर रिवर्स में लगाओ और 3 नंबर नीचे रिवर्स में लगाओ. अब कभी भी अगर नीचे जो नंबर है इनका एडिशन अगर ऊपर वाली टर्म के बराबर है, दे आर बोथ इक्वल. ऐसा इमेजिन करो 7 में से 3 सेलेक्ट करना या 7 में से 4 रिजेक्ट करना, बोथ मस्ट बी सेम. ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज है. तो ये सब पता होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा. वो जानने के बाद भी आपको 2 मिनट तो मिनिमम लगेंगे कैलकुलेट करने में. मैंने जल्दी कैसे किया, आई कैन सी यहां पर भी क्या आ रहा है, 35 कॉमन ले लिया तो 21 आ गया. तो मेरे पास आ गया 21 इंटू 35 प्लस 21. 21 कॉमन ले लिया, 36 इंटू 21. ट्राई. What are you doing? You are going to select how many tickets? Only one ticket. आप केवल एक टिकट ड्रॉ करने वाले हो. वो मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 है. दैट साउंड्स लाइक A यूनियन B. तो इसका ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B. इन सारे केसेस में आपके पास टोटल 20 चॉइसेस हैं. डिनोमिनेटर इज 20. कितने मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं? 18 तक हैं. 6 मल्टीपल्स ऑफ 3. कितने मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं? 4 मल्टीपल्स ऑफ 5. ऐसा कोई नंबर है विच इज मल्टीपल ऑफ बोथ? 15. एक ही नंबर है 15. ऐसा एक नंबर हट जाएगा. तो योर आंसर इज 9/20. एक बार कैलकुलेशन चेक करो. What is the probability the number is multiple of 3 or 5? मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास 6 नंबर हैं 3 से लेके 18 तक. मल्टीपल्स ऑफ 5 4 नंबर्स हैं
कौन से नंबर है विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ? दोनों का मल्टीपल एक ही नंबर है 15. आंसर इज 9/20. तो टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन में, स्लाइट टाइपिंग एरर. 9/20 इज द आंसर. तो A यूनियन B का सिंपल सा फॉर्मूला है, यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट. और ऐसे केस में आपका सैंपल स्पेस सेम है, कभी भी ऐसा मत करना 6/20 प्लस 4/20. क्यों कर रहे हो? आपको पता है डिनोमिनेटर 20 है, 20 का सैंपल स्पेस है, 20 में सेलेक्ट करना है, ये बदलना नहीं है. क्या बदलेगा? न्यूमरेटर में कितने मल्टीपल्स हैं? 3 के. दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3, these are multiples of 5, and these are multiples of both 15. 3 and 5 both 15. तो देखो ये किस तरह का सवाल है. एक ग्रेटेस्ट नंबर इन सबको डिवाइड करेगा, एक नंबर इन सबको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर सेम देगा. तो इसको HCF मॉडल्स में हम करवाते हैं. HCF मॉडल्स में क्या करना होता है, इनको पहले माइनस कर दो. 48 का गैप है, इनको माइनस कर दो. 92 का गैप है. इन दोनों का HCF निकाल लो. दोनों का HCF निकाल लो. ये 4 into 3 है और ये आपका 4 का मल्टीपल है 4 into दिस इज 23. ये तो प्राइम नंबर है. दोनों का HCF क्या आ गया? 4 आ गया. तो इनको 4 से डिवाइड कर दो तो आपका रिमाइंडर मिल जाना चाहिए. इनको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा. तो आपको डिवाइजर चाहिए, रिमाइंडर चाहिए. यू नीड डिवाइजर. डिवाइजर इज 4 इटसेल्फ. फिर से बता रहा हूं, ये HCF का क्वेश्चन है. इट इज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन. थ्योरी क्या होती है? आप अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करते हो एक नंबर से जो कि मैक्सिमम होना चाहिए एंड रिमाइंडर मस्ट बी सेम. तो अगर आपको ये नंबर चाहिए तो इन दोनों को माइनस करके उसका HCF ले लो. मैंने माइनस कर दिया 48, मैंने माइनस कर दिया 92. इन दोनों का HCF 4 है.
तो वो डिवाइजर 4 है। अगर रिमाइंडर पूछा होता रिमाइंडर तो डिवाइड कर दो, 43 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इज 3, 91 डिवाइडेड बाय 4 देखो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स 8 1 1, 2 टाइम्स 8 रिमाइंडर 3, रिमाइंडर सेम आ रहा देखो, 180 इज अ मल्टीपल, रिमाइंडर सेम आ रहा। तो ये स्टैंडर्ड थ्योरी है, इट इज कॉल्ड एलसीएम मॉडल और वेरिएशन ऑफ एलसीएम अप्रोच, एचसीएफ मॉडल और एचसीएम अप्रोच। डिवाइजर मैक्सिमम है और रिमाइंडर सेम है तो उनको माइनस कर दो, इनको माइनस कर दो और उनका एचसीएफ ले लो। अब इस तरह के सवाल में आई विल अगेन से थोड़ा सोचो, आपको जो जमीन है उसका लेंथ और ब्रेड्थ बता दिया है, आपसे कह दिया जो सीलिंग और फ्लोर का एरिया है वो 4 दीवार के बराबर है और पूछ रहा है वॉल्यूम निकाल के बताओ। आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है। अब L इंटू बी 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। ये 180 के मल्टीपल्स नहीं है, ये है 180 इंटू 50, ये है 180 इंटू 40। अगर एक ही मल्टीपल होता तो मैं आंसर आगे चला जाता,
इफ देर वॉज ओनली वन मल्टीपल में लगा के चला जाता आंसर। इनमें से मेरा एक आंसर। अब देखो आपका जो अगर अगर ये आंसर सही है, देखो तो आपका सरफेस एरिया 180 है और आपके पास एक सीलिंग और एक फ्लोर है, टोटल 360 है। दीवारों का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट 2 बार, लेंथ इन ब्रेड्थ इंटू हाइट 2 बार, ऐसा 2 बार होता है। तो 2 इंटू हाइट को मैंने बाहर ले लिया। आप मुझे देख के बताओ, इज 360 अ मल्टीपल ऑफ 50 और इज 360 अ मल्टीपल ऑफ 40? आप चाहो तो चेक कर लो। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ आपके लिए। 2 इंटू 15 प्लस 12 इंटू 40, एक बार चेक करो। Is there a problem with framing of question? The sum of areas of floor and ceiling is equal to sum of areas of four walls, volume of the hall is. मैं फिर एक बार इसको ट्राई करता हूँ। इस बार कॉमन सेंस से ट्राई करते हैं। आपने कहा 2 इंटू 180 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, डेसिमल आ रहा भाई क्योंकि ये वैल्यू मैच नहीं करी, आई नोटिस दैट। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी 27 इंटू एच, ये कैंसिल 9 इंटू 29 इंटू 3, तो हाइट 20/3 आ रही भैया। तो ये हो गया 15 इंटू 12, यस। तो ये हो गया 60 इंटू दिस 1200। तो ज्यादा जुगाड़ी महंगा पड़ रहा था। चलो so we have a right triangle, the sides are 3 4, obviously बात है if the sides are 3 and 4 राइट एंगल, तो अगला 5 होगा। यहाँ से एडिटिंग में मिस हो गया है। तो अब इसको पकड़ के आपने रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया तो जो कोन बनेगा वॉल्यूम का होगा। अगर इसको रोटेट करोगे तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, ये रेडियस है, ये हाइट है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ना मैं कभी भी ऐसे आर स्क्वायर लिखने के लिए फिर ऐसा लिखता हूँ, आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इज 3, खत्म कर दो। तो 30-30 सेकेंड के क्वेश्चन हैं, यू नीड टू बी क्विक इनफ विथ योर थिंकिंग। कभी भी आप ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल रोटेट करोगे तो ये तो हाइट है, आपने कहा ना रोटेटेड अलोंग द साइड 3, इसको पकड़ के आपने ऐसे रोटेट कर दिया तो यू गेट अ सॉलिड कोन जिसकी टोटल वर्टिकल हाइट तो 3 है, बेस का रेडियस 4 है और स्लैंट हाइट 5 है। तो पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा के आंसर रेडी।
केवल ना ये दोनों ऑप्शन थोड़े नजदीक हैं, अगर ये ऑप्शन थोड़े दूर दूर होते तो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर आने का मेथड दे देता यहाँ पे। 10%, 12% आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, नहीं तो मैं अप्रोक्सीमेटली कैसे बनाना आपको बता देता। चलो अब जो मैं कर रहा हूँ एक बार थोड़ा सुनना, डज इट मेक सेंस टू यू? डोंट ट्रीट दिस क्वेश्चन एज SICI, ट्रीट दिस क्वेश्चन एज परसेंटेज इंक्रीज। वैल्यू पहले 45,000 थी और ये वैल्यू जाकर बन गई 68,040। ये अचीव करने में पहले आपने 8% बढ़ाए, तो 8% ऐसे बढ़ाते हैं, फिर आपने 12% बढ़ाए तो ऐसे बढ़ाते हैं। अब आप कह रहे हो कितने परसेंटेज बढ़ेंगे, ये वैल्यू जैसी भी आएगी, अगर 108/100 आएगी तो 8% बढ़ रहे हैं, सो ऑन। आपको ये निकालना है, जो जो कैंसिल कर सकते हो कर दो, फिर बाद में फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे। दिस इज 4 into 27, this is 4 into 25, this is 4 into 23, this is 4 into 28, this is 4 into 28, this is 4 into 25। ये एक जीरो कट गया, जब ये 25 कटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। ध्यान से देखना, जब ये 4 कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 1701। अभी क्या क्या बचा मेरे पास, 1701/45 is equal to 27/25 into 28 into k। मुझे नीचे 100 लाना है कुछ भी करके, तो k की वैल्यू मिलेगी 25, 5 into 5, 5 into 9, ऊपर 9 का मल्टीपल है, ध्यान से देखो, 9 into 1 9 कैरिड ओवर 8 80, तो 8 times 72 कैरिड ओवर 8 9। ये 9 का मल्टीपल है, 9 into 3 9 into 21, 9 into 7 9 into 4, सब कैंसिल हो गया। इसको जब रीअरेंज करोगे तो 5/4 इज इक्वल टू k, तो 25% की बढ़ाता है एट द एंड। बहुत ज्यादा टेबल्स स्ट्रांग होने चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ अप्रोच। दूसरा, थोड़ा ध्यान सुनना, दूसरा, आप 8% प्लस 12% बढ़ा रहे हो, 8% प्लस 12%, तो टोटल इंक्रीमेंट जो होगा ना वो 20.96, लगभग 21% का होगा, लगभग 21% का। अभी यहां से लेके यहां पर इंक्रीमेंट है कितना, आपका इंक्रीमेंट है 23040/4500 into 100। ये 2 जीरो, ये 1 जीरो कट गया, तो 2304/45। इसको अप्रोक्सीमेटली आप डिवाइड कर लो कहां तक जा रहा है। 45 से डिवाइड होगा ये 4 बार, 5 बार, 5 बार डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 525, तो आगे आ गया 54, एक बार डिवाइड होगा 54, रफली 51% के आसपास है। अब देखो सुनना, 21 प्लस k प्लस 21k/100 मेरे को 51 के आसपास चाहिए, तो एक ही वैल्यू लार्ज इनफ है जो 51 तक ले जाएगी आपको। 51% का रफली ग्रोथ है यहाँ पे, 51% का। टेक योर टाइम, थोड़ा सांसे वासे लो। ये जो राइट साइड वाला मेथड मैंने लगाया है इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव चेंज? a प्लस b प्लस AB/100। तो ये लगभग 21% के बराबर है। टोटल इंक्रीमेंट 51 में भी 52% के बराबर है। टोटल इंक्रीमेंट परसेंटेज इंक्रीज 51-52 के आसपास है। तो 21 में क्या लगाऊं सक्सेसिव, ताकि 51 के आसपास जाए। 10 लगाओगे तो ये 33-34 के पास जाएगा, ये भी 34-35 के पास जाएगा। अगर 21 में 16 भी लगाता हो, 21 में 16 लगा देते हो तो ये भी 40 तक जाएगा। आपको क्रॉस करना है, 25 इज द ओनली पॉसिबल चॉइस। इज द सेकंड मेथड क्लियर टू? पहला तो मैनुअल है, पहले में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना।
A company produces 50 pens for rupees 450 and 80 pens for rupees 540. Suppose the cost curve is a straight line. Then what will be the cost of producing 130 pens? तो ना ये स्ट्रेट कर्व ऐसा होता है, आप जब एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हो तो जैसे मान लो एक लाइन आ गई आपके पास, y is equal to 2/3x plus 5, ये इक्वेशन है। x अगर 3 से बढ़ेगा तो y 2 से बढ़ेगा, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये वेरिएशंस में कवर होता है। आप इतना ज्ञान मत लगाओ, आपने यहां से जब यहां गए तो 30 पेन एक्स्ट्रा बनाए, 30 पेन बनाने में आपको 90 रुपीज एक्स्ट्रा लग गए, तो एक पेन बनाने में 3 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, एक्स्ट्रा 3 रुपए। तो आप देखो 80 से लेके 130 आने में 50 पेन एक्स्ट्रा है, 50 पेन एक्स्ट्रा मतलब 150 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, तो इसमें 150 ऐड करे क्या बनता है 10। इसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। कुछ अमाउंट फिक्स्ड है और कुछ अमाउंट डिपेंड करता है आप इंक्रीमेंट कितना और कैसे करते हो। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, ये नहीं बदलता। तो ये इसको लीनियर वेरिएशन भी कहते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, द कॉस्ट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन और कर्व ऑफ कॉस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आप इंक्रीमेंट से सॉल्व कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। In few minutes I'll share the recording. Yeah.